Islamiyat work? Aris? Oh, sorry, Izyan. Islamiyat work? Okay. Okay, we will start the class. Bismillahirrahmanirrahim. And we will continue with where we have stopped in the yesterday's class. First, I will give you a review of what was done in the last three classes, actually, not going on with detail of everything. We started with the biography of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's topic, and mobiles को थोड़ा सा रेस्ट दे देना, ठीक है? साइड में पॉकेट में आगे आ जाए. If you want to sit, you can come here in the front. Okay, I don't think there will be that many students कि आपको एंड पे जाके बैठना पड़े. But if you're sitting there, it's fine. थोड़ा सा फोकस अभी आपने यहाँ पे रखना है मोबाइल्स को. आपने मैच I know is going on, कुछ थोड़ा सा मैच के साथ भी कनेक्टेड है, तो वो ऑनलाइन वाले फायदे में होते हैं, वो साथ साथ जो है ना क्लास भी ले रहे होते हैं. तो आई हैव नो इश्यूज इफ योर फोकस इज हियर, लेकिन कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन, क्योंकि आपने एक दफा सुन लिया, आई कैन अश्योर यू यू विल नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. वी स्टार्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स बायोग्राफी फ्रॉम बर्थ till we have reached persecution and opposition to followers of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the question which I showed you at the end. I told you this question is never asked in 10 mark question, but keep in mind जब आप prepare कर रहे हो कि ये 10 marks में exam में आ सकता है. अगर आता है तो you are already prepared for that, so there is no need to worry. आपके पास model answer है. You have to explain 4 reasons why people of Makkah opposed Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If it's a 4-mark question, तब तो easy है. But if it's a 10-mark question, you will have. There is no need to write the heading. You can see headings here. Some students start thinking, do we have to write heading? I just wrote it to make you understand it. But Cambridge ने इस साल से आपका जो paragraph change होता है, they have focused on the beginning wording. They have given higher marks to those students who have used ट्रांजिशन वर्ड्स जो आपके इंग्लिश में मोर ओवर, अनदर रीजन, अपार्ट फ्रॉम दैट, इस तरह के वर्ड्स यूज करने वाले स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स दिए. अब ये मतलब नहीं कि आप खाली वो वही वर्ड्स यूज करना शुरू कर दें. नो, दे विल सी योर फुल आंसर, बट सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस विल मेक यू गेट हायर मार्क्स. पर आपको मैं ट्रांसक्रिप्ट जब दिखाऊंगा, यू विल सी देयर इज नो मेजर डिफरेंस other than the student has structured the answer in a perfect way. Same notes se, same source se preparation hai, but the way of expressing the answers have impacted the grades of the students as well. तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा, अब ये heading नहीं चाहिए. You will begin it. Religious causes was one of the reasons also. You have one of the reasons and then go on with that. Examiner knows that you are talking about religious causes, then you are going to talk about moral causes, but develop them. What do we mean by the moral causes? What do we, and how they impacted? आप history में डेवलप्ड पैराग्राफ काफी हद तक समझ रहे होते हैं जब आप 7 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. उसके 3 रीजंस आप एक्सपेक्ट. सेम गोज हियर. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड अ पॉइंट इन योर आंसर हियर, एनी पॉइंट, यू नीड टू डेवलप इट एज वेल, और आपने उसको इवैल्यूएट भी करना है और कनेक्ट करना है. क्वेश्चन के साथ कनेक्शन जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हियर. ठीक है, दिस इज नॉट द मेन क्वेश्चन, सो आई विल स्किप इट एंड आई विल मूव टू. This is 4 mark which I was talking about. Why did Quraysh feel? और ये बहुत दफा आया हुआ है कैम्ब्रिज के अंदर, तो आप ऊपर वाले आंसर से भी हेल्प ले सकते हैं और इधर से भी आपको हेल्प मिल जाएगी. 4 mark question is the turning point in your grades. Mostly students 4 mark questions को इग्नोर कर देते हैं, and that's the place जिसमें कई बच्चों के 1 out of 4, 2 out of 4, और कुछ जो स्ट्रॉन्ग है उन्होंने 4 out of 4 भी लिए हैं, और कुछ बच्चों का ये एरिया स्ट्रॉन्ग होता है. अभी मैं कुछ स्कूल के टेस्ट वगैरह चेक कर रहा था. आई हैव फाउंड स्टूडेंट्स getting 2 out of 10 and 3 out of 10 in knowledge based question, but I saw their 4 mark question, I found it perfect answer, I gave them 4 out of 4. तो आपका strong area है. आपको पेपर में almost 12 से 14 marks आराम से मिल जाते हैं by just your 4 mark questions. So if you are strong in your 4 mark questions, आप 12 marks आपका strong मिल जाता है. बाकी कुरानिक पैसेजेस से कुछ मार्क्स गेन करते हैं. नॉलेज अगर किसी का रट्टा लगाना या फैक्ट्स रिटेन करना मुश्किल है, तो वो स्टूडेंट जो है बैक जेब में, ठीक है, इसको साफ साइड पे. ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द मेन क्वेश्चन फॉर टुडे. दैट इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चंस, और ये आपके पेपर में लाइकली क्वेश्चंस में है अगेन, क्योंकि माइग्रेशन टू अबिसिनिया इज नॉट आस्क्ड सिंस अ गैप. देयर इज अ गैप. पाकिस्तानी वेरिएंट में माइग्रेशन टू अबिसिनिया नहीं आया. देयर वाज टाइम इट वाज रिपीटेड बैक टू बैक. हर पेपर में थोड़े थोड़े गैप के साथ रिपीट हो रहा था. अभी आप एंड पे क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यू विल फाइंड माइग्रेशन टू अबिसिनिया इज आस्क्ड मेनी टाइम्स.
If any question is asked many times, expectation higher हो जाता है. Okay, अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी भी कोई चीज को स्किप करते हैं, you will lose marks. या you won't be able to get highest grade in it. आप कहेंगे I just missed that small part और इसके मेरे मार्क्स कम है क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत हाई होता है. इसमें 10 out of 10 भी मिले हैं बच्चों को और मिल सकते हैं. What is expected in the answer of this question? This is very important thing. You can see one outline on the beginning. Again, क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन की वर्डिंग भी बड़ी ट्रिकी थी. कैम्ब्रिज एक दफा क्वेश्चन दे दिया, राइट एन अकाउंट ऑफ फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ इस्लाम. They did not mention to Abyssinia, they did not mention towards Yathrib. तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ इस्लाम जब हम वर्ड यूज करते हैं, मोस्टली कैम्ब्रिज हिंट देता है बाय द फॉलोअर्स, या कैम्ब्रिज कहता है तो अबिसिनिया तो पता चल जाता है, या दे मेंशन द ईयर, तो ऑटोमेटिकली यू नो दिस इज माइग्रेशन टू अबिसिनिया. स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यथरिब और अबिसिनिया की माइग्रेशन के इवेंट्स को मिक्स अप करते हैं. और आई हैव फाउंड सम स्टूडेंट्स जिन्होंने होली प्रॉफिट को भी अबिसिनिया माइग्रेशन में ऐड किया होता, कि ही वाज इन द फर्स्ट बैच, देन ही केम बैक एंड देन ही वेंट अगेन. प्रॉफिट डिड नॉट गो टू अबिसिनिया. तो ये चीजें थोड़ा सा आपने केयरफुल होना. जो पढ़ के प्रिपेयर्ड होते हैं उनका ये मिस्टेक नहीं होता. उनकी कहाँ मिस्टेक होती है, वो भी मिस्टेक नहीं होती. दे लैक सम पॉइंट्स इन देयर आंसर और इसीलिए आंसर 7 out of 10 और 8 पे फॉल करता है. 8 पे मुश्किल से जाता है. 8 इट मींस लेवल 4. वहां तक पहुंचने के लिए क्या मेन एक्सपेक्टेशंस हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट वन. सबसे पहले आपके आंसर में कॉजेज ऑफ माइग्रेशन होना चाहिए. अब आई नॉर्मली आस्क दिस इन द क्लास के व्हाट आर द 3 कॉजेज Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated, या 3 reasons जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे. You can see here 3 things which you need to cover in the causes are, why do you think Prophet migrated? To avoid the persecution and opposition. अब आप इस पॉइंट को डेवलप करेंगे. आपने लिखना है the persecution and opposition reached its highest, it became severe and it led to the death of some companions like Hazrat Sumayya. So you can see the answer is getting better. अगर आप कहते हैं ना persecution and opposition became severe and it led to the death of the people, so you won't be able to get marks by just mentioning that. आपने उसके अंदर एग्जाम्पल भी ऐड करनी है. विच एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू ऐड? हजरत सुमैया के एग्जाम्पल. एक रीजन हो गया. दूसरा रीजन है व्हाई अबिसिनिया. So the people of Abyssinia invited the Prophet. Is it right? So what's the going to be good close? That is different. That's pledges of Aqaba. It's Medina. Yes, sir. King of Abyssinia was good. Najashi, who was a kind king. You will talk about the 2 reasons हो गए आपने explain किए. Third reason जो बड़ा जरूरी है, permission from Allah. So we have a reference here which you are going to add. Allah's Quranic reference is there in which Allah has permitted Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You can see आप थोड़ा short कर सकते हैं अगर बड़ा reference नहीं देख सकते. Those who migrate in the cause of Allah after having been wrong will surely give them better place in this world. Even और भी Allah's land is vast और आप develop करना चाहें उसको कर सकते. So that is the permission from Allah. So we have 3 reasons. ये आपका पहला पैराग्राफ है. अगर आप इसमें से एक चीज भी छोड़ते हैं, I can say examiner immediately उसको highest level पे marks देते हुए वो click करेगा. उसको सोचना होगा कि level 4 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा. So this is the beginning by the way. Now moving to the second paragraph of your answer. A prophet permitted a group of people. Discussion about the first group. कुछ books में combined हुआ हुआ है. There are 2 separate groups which need to be discussed separately. First group किस साल गया, lead कौन कर रहा था, फेमस पर्सनालिटीज कौन थे. यहाँ पे भी थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है. देयर आर 2 हजरत उस्मान हु माइग्रेटेड इन दैट जर्नी. एक है उस्मान बिन मज़ून और दूसरे हैं उस्मान बिन अफ़ान. तो हजरत उस्मान बिन मज़ून वाज द कमांडर और हेड या लीडर, और हजरत उस्मान बिन अफ़ान जो थे होली प्रॉफिट की एक डॉटर के हस्बैंड थे, हजरत रुकैया. तो आप वहां पे उसको मेंशन करेंगे, ठीक है. और अब मेन चीज जो यहाँ बच्चे लैग करते हैं अपने आंसर में, पहला ग्रुप माइग्रेट करके चला गया. Why did the first group come back to Makkah again? Yes. Exactly. अब इसको थोड़ा सा आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. Even my handout has mentioned it. मैंने काफी हद तक पॉइंट्स मेंशन किए. अभी रिसेंटली जो हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है उसमें कैम्ब्रिज कहता है स्टूडेंट यहाँ पे डिटेल्स और ऐड कर सकते हैं. र्यूमर का रेफरेंस बिल्कुल ठीक है. जब मुसलमान मक्का से अबिसिनिया चले गए, they were welcome, they were settled there. There was a rumor. और rumor यह था Prophet sallallahu alaihi wasallam के ऊपर कुरानिक वर्सेस सूरह नजम की रिवील हुई and he was in Baytullah. When he received the verses, he recited them loudly. When he recited them loudly, जो कुरैश के लीडर्स खड़े हुए थे उनके ऊपर एक इंप्रेशन ऐसा पड़ा, they all, क्योंकि वहां पे वर्स है जिसका मतलब है and bow और make sajda. So they all fell down in sajda. अब a rumor spread कि these people have accepted Islam. और वो सारे कौन थे? कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स थे. That news or rumor reached Abyssinia. जब वो Abyssinia न्यूज पहुंची
तो वहां पे मुसलमानों को लगा व्हाट्स द पर्पस ऑफ स्टेइंग हियर व्हेन द पीपल ऑफ मक्का हैव एक्सेप्टेड इट, दे स्टार्टेड रिटर्निंग बैक. When they started returning back, they came to know it was a rumor and it was not true news, false news थी. अब they came back and they told Holy Prophet and his other companions कि situation in Abyssinia is very good. तो Prophet prepared another group. क्योंकि जब ये लोग वापस आए, कुरैश ने इनके ऊपर persecution और बढ़ा दिया था. And therefore Holy Prophet allowed another group of people to migrate. अब आपने इसमें again कितने आदमी थे, मीन्स कितने लोग थे. Here you have to talk about again a leader. कौन है? हजरत जाफर तैयार. आप थोड़ा उसको डेवलप भी कर सकते हैं. अब आगे मुस्लिम्स वहां पहुंचे, लेकिन साथ में इस दफा अच्छा पिछले ग्रुप में कुरैश ने फॉलो किया था मुस्लिम्स को. एक्सीलेंट. इन द फर्स्ट ग्रुप कुरैश को जब न्यूज मिली, दे फॉलोड द फर्स्ट ग्रुप. When they reached the port, जो सी पोर्ट है, शिप the people have already boarded in the ship. अब अगर मैप देखते हैं, अगर आप मक्का से रेड सी की तरफ रूट देखें तो हैव टू ट्रैवल बाय शिप, थोड़ा सा वो डिस्टेंस कवर करना होता है टू एंटर इनटू अफ्रीका. सो द मुस्लिम्स हैव ऑलरेडी बोर्डेड इन द शिप एंड दे लेफ्ट सेफली. कुरैश ने उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन अभी सेकंड ग्रुप में दे वर ऑलरेडी अवेयर कि द मुस्लिम्स आर गोइंग टू लीव अगेन. सो दे फॉलोड द मुस्लिम्स. जो ग्रुप गया और कुरैश का एक डेलीगेशन गया. सम स्टूडेंट्स जस्ट मेंशन के डेलीगेशन गया, फाइन, बट एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द नेम्स ऑफ द डेलीगेशंस. और नाम याद रखना, इट्स अ चैलेंज. और राइट जगह राइट नेम यूज करना, इट्स अ चैलेंज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई टोल्ड यू हम मिक्स अप कर देते हैं. एज अ टीचर 3-4 साल 5 साल पढ़ाने के बाद आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग फ्यू नेम्स. बाय द वे, इवन आई हैव टू राइट समथिंग ऑन माय हैंड एज वेल व्हाइल गिविंग अ लेक्चर कि मैंने जब नाम बताना है तो आई हैव टू चेक सही नाम क्या है, क्योंकि इट्स नॉट इजी. आपको फायदा ये होता है कि आपका पेपर 1 बहुत दफा रिकैप होता है, तो आपका वैसे भी अक्सर अच्छा हो जाता है, क्योंकि हर टीचर कहीं अकेडमी जाते हैं, आप कहीं क्लास में भी जाते हैं, टीचर भी बिगिन वहीं से करते हैं, तो आपको फिर भी याद हो जाना चाहिए. बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन इट, आप एक आउटलाइन अपने पास बना सकते हैं. ठीक है, मैंने इस पैरा में ये नेम्स लिखने हैं, रेफरेंस लिखने हैं, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आउटलाइन. सच टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अब 2 लोगों के नाम कौन कौन से हैं? अब्दुल्ला इब्न रबिया एंड द सेकंड वन इज अमर इब्न अल-आस. दो जो कुरैश की साइड से डेलीगेशन गया था. दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी अमर इब्न अल-आस एंड अब्दुल्ला. और ये नॉर्मली भूल जाता है, इट्स नॉट इजी टू रिटेन अंटिल आप डिस्कस करें आपस में. एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स डिस्कसिंग बिफोर पेपर. जो आप कहते हैं ना कि हमने 1 घंटा पहले पढ़ा था वो याद हो गया. क्यों? एक तो आप फोकस्ड होते हैं, दूसरा डिस्कशन इज गोइंग ऑन. व्हेन यू डिस्कस समथिंग, यू इंटेंड टू एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, तो आपको बोलता नहीं है. तो इस तरह से प्रिपरेशन में आप टारगेट्स डिवाइड कर सकते हैं. एक टॉपिक फ्रेंड को दे दिया, खुद कर लिया कि ये 3 चांसेस है क्वेश्चन के, यू विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, आई विल एक्सप्लेन दैट वन. तो आपको बहुत हद तक भूलता नहीं है, और दैट इज समथिंग, आपको वो नाम भी याद रहेंगे. दीज 2 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब कुरैश ने मुसलमानों पे वहां जाके इल्जाम क्या लगाया, जो एक्यूजेशन लगाया, you have to talk about it. You can say that when they had left, first thing they have ran away from our area, so we have a right to call them back. Secondly, they had left Abrahamic faith. Hazrat Amr ibn al-As, he was very famous in his diplomatic or political skills. Actually, he knew what is the strong point जिससे मैं नजाशी को convince कर सकता हूँ. He can say something else as well, but he knew that Najashi is the follower of Christian religion. तो उसको कन्विंस करने के लिए I have to use the statement जिससे नजाशी जल्दी कन्विंस हो जाए उसकी बात सुनने के लिए. What did he do? He said they had left Abraham. यहाँ से ऊपर से first he gave them gifts, थोड़ा सा bribe करने की कोशिश, and said that some people are hiding in your country who are believing in self-made prophet. They had left Abrahamic faith and did not accept Christianity. ये ना भी बोलते तो भी बात पूरी थी. Why did he use that statement? क्योंकि इससे कौन कन्विंस होगा? क्रिश्चियंस कन्विंस होंगे, नजाशी कन्विंस होगा कि they are not accepting Christianity. वो मुस्लिम्स के, लेकिन नजाशी was just king, as we have discussed above. He called them Muslims, giving judgment there. फिर आगे आ जाते हैं. अब नजाशी ने जब कॉल किया, अब मेरे हैंडआउट में there is a big detail or the speech of नजाशी here. I want you to cut it down. आप इसको ब्रीफ कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स इतना पूरा लिखते भी हैं, but it is better क्योंकि आपके आंसर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. कुछ बुक्स में तो पूरी स्पीच है. I personally try to cut it down. आप बीच में लिखने के बाद डॉट भी लिख सकते हैं if you have covered a big part of the speech there. So it's up to you. You can rephrase it. You can write it as it is. This is the speech of Hazrat Jafar in front of Najashi. The speech is very good. The wording is understandable. Easy wording है, आप याद भी कर सकते हैं. It's not a big deal, but it's not easy to retain the whole sequence of the speech there. So you can keep few points from there
आगे आप उसके बाद Najashi's reaction mention करें. Najashi asked, he was convinced, he asked Muslims to recite some part of the Quran. So he recited the verses of Surah Maryam. Exactly. So you can see the transition. अब आप एक चीज पे नोटिस करें, आंसर एक सीक्वेंस में जा रहा है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई पॉइंट लिख लेते हैं, बाद में याद आता है वो दो बार रह गया, तो दो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं. एक तो एरो बनाते हैं, स्टार्स बनाते हैं, एक्सेप्टेबल है, बट एग्जामिनर पे वो इंप्रेशन अच्छा नहीं देता. अगर दो आंसर्स के बीच में कंपैरिजन है, एक सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड है और एक आंसर में एरोज हैं, कटिंग्स हुई हुई एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, दे आर गोइंग टू अफेक्ट योर ग्रेड्स बाय द वे. तो आपने कोशिश करनी है इस चीज के ऊपर फोकस करना है. गुड पॉइंट. नजाशी का रिएक्शन आप मेंशन करेंगे. व्हाट डिड ही से? अभी yes, by God, gospel and Quran are the light of the same blood. ये रेफरेंसेस देखें, मैंने जहाँ की पॉइंट्स हैं मैंने इसको खुद भी थोड़ा सा कलर्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है. जब आप प्रिंटेड वर्जन लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में इतना नहीं समझ आता, इसलिए मैं सॉफ्ट वर्जन साथ साथ आपको शेयर भी कर देता हूँ. लेकिन अगेन, दे आर नॉट द ओनली आंसर्स. You can use your own notes, you can use your book or whatever the method you are using it. जब आप टेस्ट करके देते हैं या जो एग्जाम्स हम कंडक्ट होते हैं तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा बेटर फीडबैक पे इंशाल्लाह मिल जाएगा. यस Sir, did Najashi accept Islam? Yes, we are going to discuss that, but this happened when Prophet wrote letter to kings. Actually, I'm coming to that discussion. वो Madani life में जाके discuss करेंगे. He accepted Islam on the hands of Hazrat Jafar Tayyar, who was there at that time, and he sent some gifts for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो हम वहीं पे discussion करेंगे, ठीक है? And his janaza was led by Holy Prophet. जनाजा गायबाना जो है absence में किसी को पढ़ा जाता है. That is what we can add there in the discussion. अभी बात खत्म नहीं हुई. Najashi was convinced. He allowed the Muslims to stay, but Quraysh tried another attack. And they came next day again. And next day, they started giving a different way to convince Najashi. What did they say? They said that Muslims don't believe in the divinity or the means holiness of Hazrat Isa alayhi salam. Like they are not accepting him as higher level as you believe in your religion. He tried to convince in that way. Najashi asked the Muslims again to tell something about Hazrat Isa and his mother. Who is Hazrat Isa's mother? Hazrat Maryam or Mary. Yes, so and Hazrat Jafar again recited the verses of Quran in which he spoke about Hazrat. पहले भी ऊपर वर्सेस में भी काफी हद तक सूरह मरियम की भी उसी से रिलेटेड थी, लेकिन ये प्योरली अबाउट हजरत मरियम एंड हजरत ईसा अलैहि सलाम डिस्कशन वाज देयर. Najashi was convinced and he said something. First of all, कुछ बुक्स में एक लिखा हुआ स्टेटमेंट, he took a stick from the ground. ये फरखंदा नूर की बुक में या और भी बुक्स में होगा. He took a stick from the ground and he said that Hazrat Isa alayhi salam is nothing more than whatever is stored here in the Quran. And then he said, go. He himself said anything. He himself does not say anything beyond that. And he was impressed. वहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया ना, he took a stick and said, then go and live with peace. If anybody harms you, I will deal with them. And then he sent the Quraysh delegations back. That is migration to Abyssinia. Total answer. आपके आंसर के अंदर पूरा स्ट्रक्चर्ड इवेंट्स चल रहे हैं, सीक्वेंसिंग आ रही है, और थोड़ी सी आप डिटेल अगर ऐड करना चाहते हैं, you can add in the details of the groups who migrated. Okay, इसमें कुछ बुक्स में और भी references and details है. I think it's enough by the way, but if you want to develop more, make sure आप time manage कर सकते हैं. 10 mark के question के लिए 20 minutes is maximum. And if you're doing 10 and 4 marks, 25 minutes is ideal. It's better not to exceed it. कुछ cases में exceed होता है, आप बाकी जगह cover up कर सकते हैं, but try to avoid exceeding the limit there. Okay. One of the very important question for Cambridge point of view, 10 marks का है, और ये link हो रहा है अगले event से, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ. 4 mark का ये question इधर भी आता है, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, वो आगे आ रहा है जो homework question है, अभी मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा. ये तो आसान है. ये कहाँ से आपको आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का? ऊपर आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, व्हाई द पीपल ऑफ मक्का अपोज इस्लाम. ये सेम आंसर है. क्वेश्चन की वर्डिंग सिर्फ चेंज है. अगर आप ऊपर क्वेश्चन देते हैं व्हाई दे अपोज इस्लाम इज ऑलमोस्ट सेम. व्हाई दे परस्यू, अच्छा यहाँ पे फोकस करना है कि व्हाई दे परस्यू दोज मुस्लिम्स हु रन अवे. उनका इमेज का इशू आ सकता है ना, कि मुसलमान चले गए वहां पे सेटल हो गए, तो कुरैश की एक वीकनेस हाईलाइट होगी कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल द पीपल. And then Muslims will become stronger and they will start preaching against leaving idol worshipping. So who is going to face the issues? The Quraysh. So they are the points which you are going to develop. There is a modern answer, or I can say final answer here, but it could be supported and expanded more if you want with the above discussions there. Okay.
एक क्वेश्चन आज का हुआ which is very important, migration to Abyssinia. Now link migration to Abyssinia to the next. What do you think is going to be the next event after that? Social boycott. Excellent. And social boycott, is it asked in 10-mark question in CI exams as a 10-mark alone? Social boycott. Do you think it could be asked a 10-mark question? Actually, it was not asked as a 10-mark question since 2025. And Cambridge for the first time gave this question of social boycott as a 10-mark question just now. That is asked in non-Pakistani variant. It is May-June 2025 paper, non-Pakistani variant. आपके paper में chances नहीं आ सकता है ऐसे मिलता हुआ. We normally ignore this topic actually. But I will show you my handout. You will see a lot of detail there. This is Cambridge question. Describe the boycott of Muslims to Shebe Abi Talib. And to what extent was this boycott the worst time in the life of Holy Prophet? Part को मैं थोड़ा सा साथ ही बता दूं. You have to first mention, is it the worst? Or if you say yes, it's the worst, you will develop it. Some students say it's not the worst. They speak about Taif actually. And they say Prophet ki ek hadith hai. Someone asked Holy Prophet ﷺ, what is the worst day in your life? Like challenging, most challenging. Prophet ﷺ said that's the day, the visit to Taif, the day people stoned me. So those students were saying that's not the worst, the worst is something different. तो आप वहाँ पे देख. लेकिन आपने फिर भी उसके बारे में थोड़े से points लिखने हैं. However, करके ये साथ में अपने बताना. Although Prophet ﷺ himself said the Taif was worst. लेकिन इसको भी as a worst explain किया जा सकता है. What happened inside it? You just need to evaluate on that. पूरा इवेंट एक्सप्लेन नहीं करना. बाद बच्चे ऊपर 10 मार्क्स दोबारा नीचे लिखना शुरू कर देते हैं. So you need to understand they are asking you to justify, connect के yes it is one of the worst situation in the life of Holy Prophet. कैसे आपने लिंक करना है वो भी आपको मैं उसकी मार्किंग स्कीम में दिखा. सोशल बायकॉट के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन मैं नॉर्मली पहले पार्ट ऑफ अ 10 मार्क क्वेश्चन आता था. अब इट्स आस्क्ड एज अ 10 मार्क क्वेश्चन. What could be the possible outline? पहले मैं वो आपके आंसर दिखाता हूँ अपना, फिर इसकी मार्किंग स्कीम भी मैं आपको साथ में दिखाता हूँ. ओके, सो वी आर मूविंग टू सोशल बायकॉट. अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन है और यू ऑलरेडी आई गेव यू वन होमवर्क क्वेश्चन टिल नाउ. दिस इज द सेकंड होमवर्क क्वेश्चन व्हिच यू विल राइट विद यू. और ये आपको दो जगह हेल्प करेगा, मैं आपको वैसे ही बता दूं. एक आपको माइग्रेशन टू एबिसिनिया में हेल्प करेगा और दूसरा आपको हेल्प करेगा माइग्रेशन टू मदीना में भी. ठीक है आरिज, होमवर्क क्वेश्चन लिख लें साथ में क्विकली. दो हो गए, एक ऑलरेडी पहले का दिया हुआ है. तो व्हाट यू विल डू व्हेन यू विल आंसर बोथ क्वेश्चंस, you are going to send the answers to face students हैं. अगर even आप मुझे कॉपी देंगे, I might be not able to check it. Even I will appreciate कि आप मुझे या तो कैम स्कैनर से थोड़े क्वेश्चंस हो तो even picture is fine, but if it's a proper answer then PDF file as cam scanner that is helpful, क्योंकि मैं उसके ऊपर फीडबैक आपको लिख के भी दे दूंगा उसी के साथ. यही आपने आज लिखना है. पहले मैंने दिया था वो पिछली शुरू की क्लास में, दैट वाज अबाउट डिड द प्रॉफिट्स फैमिली हेल्प हिम और नॉट. यस, हाँ, अंडरस्टैंड. ये आपको पहले तो मैंने करवाया हुआ अभी शुरू में अरेंज है कि वाज प्रॉफिट्स फैमिली इंपॉर्टेंट, तो उस वाले क्वेश्चन को आपने उसमें सामने रखना है. मंडे को टेस्ट है. मैं आपको ग्रुप में एक्चुअली स्टूडेंट्स स्टिल कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, लेकिन मंडे को जो टेस्ट होगा प्रॉफिट्स लाइफ इन मक्का से ही रिलेटेड होगा. और द क्वेश्चंस जो मैंने आपको ऑप्शनल छुड़वाए हुए हैं, कंडीशन ऑफ अरेबिया आपने नहीं करना. यू आर गोइंग, मैं उसमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स में लिख दूंगा. प्रॉफिट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टू कॉल टू प्रॉफिटहुड, इवेंट ऑफ कॉल टू प्रॉफिटहुड, परसिक्यूशन, एंड द लास्ट थिंग विल बी माइग्रेशन टू एबिसिनिया. ये 5 टॉपिक्स हैं. मैं ग्रुप में भी मैसेज में लिख दूंगा. और वैसे भी आप चाहें तो प्रॉफिट्स लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल माइग्रेशन टू एबिसिनिया, माइग्रेशन टू एबिसिनिया इज इंक्लूडेड इन इट. ओके, जहां तक अभी हमने आज एंड किया है. तो आज की क्लास में और कल की क्लास में डेफिनेटली वी विल बी कवरिंग मोर टॉपिक्स. तो मंडे वाली क्लास में टॉपिक आपका सिर्फ यहीं तक आएगा, एबिसिनिया तक. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी समझा, उसका लास्ट टॉपिक का पार्ट है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द वे हाउ यूज्ड टू एक्सप्लेन इट बिफोर 2025. और मई जून 2025 में अभी आ गया तो डेफिनेटली वी नीड टू थिंक अबाउट इट. लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग इट, क्योंकि क्वेश्चन यही था हमारे पास मॉडल कैम्ब्रिज का. अब तो नया आ गया जिसमें बनु हाशिम का बायकॉट अलग हो गया है और ताइफ तो ऑलरेडी 10 मार्क्स में आ रहा है. व्हाट वी नीड टू डू, द आउटलाइन इज हियर एंड यू विल सी द आउटलाइन इज कवरिंग अ 10 मार्क इंफॉर्मेशन. हाउ वी विल कनेक्ट सोशल बायकॉट विद माइग्रेशन टू एबिसिनिया. अब थोड़ा सा आपने उसको समझना है, फिर मैं आपको ये आउटलाइन भी दिखाऊंगा. जब माइग्रेशन टू एबिसिनिया में मुसलमान सेटल हो गए एबिसिनिया में, who was angry on that? Quraysh. Why they were angry? Because for the first time they failed on the ambassador level discussion. हमेशा वो जीत के आते थे, कन्विंस कर देते थे.
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दे वर रिटर्न बैक एम्प्टी हैंडेड, दे वर वेरी एंग्री। अब वो वापस आए और आके उन्होंने सारा जो फोकस था वो जो रिमेनिंग मुस्लिम्स थे, क्योंकि सारे मुसलमान तो नहीं गए ना, अराउंड 100 मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू अबिसिनिया, रिमेनिंग आर इन मक्का। अब दे टारगेटेड दोज मुस्लिम्स हु आर लेफ्ट इन मक्का, okay, and they intensified the tortures, persecution and all of these things. उसके ऊपर कुरैश का गुस्सा बढ़ने का एक और रीजन है, टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम एट द वेरी सेम टाइम। मैंने कल आपको क्लास में बताया था, हजरत उमर एंड हजरत हमजा। इन दो लोगों की कन्वर्जन से कुरैश का एंगर और इंटेंसिफाइड हो गया। तो व्हाट डिड द कुरैश डू? दे डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। और वो किसके पास गए? To stop Holy Prophet, who was tribal protector Abu Talib. They went to Prophet's uncle Abu Talib and they asked Holy Prophet's uncle to stop your nephew from preaching Islam. थोड़ा सा strict way में. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam talked to his Holy Prophet's uncle talked to Holy Prophet and asked him, do not burden me for something which I and you cannot resist. वो मैंने आपको ऊपर persecution में एक statement दिखाई है, उसमें लिखी हुई है। Prophet का reaction भी आपको पता है। What did he say? Sun, if they put, by God, if they put sun on my right hand, moon on my left hand, even I will not stop. अब आप ये देखें, ये dialogue को stretch कर रहा है, and your answer is exceeding, like you are making a big paragraph to of your answer. अब you can see things are developing. एक पूरा paragraph आपके पास बन गया regarding the background of social backward. अब Quraysh were angry because they found that the whole, because uncle said, if you have this courage, I will support you. Quraysh were angry. They said the whole tribe is supporting, the whole tribe is helping Holy Prophet. So they decided to boycott the whole family. A boycott वो क्या था? It was a social boycott, but it included economic boycott कि आपको economically भी आप किसी से interaction, social ties, political ties, economic ties cut down है, and the Banu Hashim were not allowed to stay in Makkah. They were exiled. Exactly. वो जमीन जो थी, property that belonged to Holy Prophet's uncle Abu Talib. Shape word जो है ना actually वो valley से narrower है. Arabic में what is the word used for something narrower than a valley? Geography आ गया. It is a very good site to construct the dam there as well. Valley से भी narrow. Valley is a passage between the mountains. आप कितनी वैलीज देख रहे हैं? नारायण वैली, कागान वैली, इतनी सारी वैलीज देख रहे हैं। Gorge, very good. So the translation of Shaib is also called gorge. So gorge of Abu Talib भी हम इसको कह सकते हैं. It is more narrower than a valley. तो अब आपको पास वहां पे वर्ड आ जाता है, gorge भी अगर लिखा हुआ आ जाए, कोई भी वर्ड यूज हो तो this is same thing. Prophet's uncle took the whole Banu Hashim there. एक बंदा था Banu Hashim में, बड़ा main person था, who did not join them, and he was from Banu Hashim. Whole Banu Hashim was boycotted except one person. Who was that? Abu Lahab, which we discussed him yesterday. So he did not join because he said, I'm not the supporter of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm against him. और एक person था जो इससे belong नहीं करता था Banu Hashim से, एक तो हज़रत खदीजा है ना, उनके अलावा भी एक person है who was not the part of Banu Hashim. He joined that boycott and his name was Hazrat Saad ibn Abi Waqqas. So if you want, you can add his name. और ये आपको कहाँ help करेगा? हजरत साद के ऊपर नोट लिखने में भी आपको मिल जाएगा पॉइंट, आप उसको वहां पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अब बायकॉट स्टार्टेड, यू आर गोइंग टू राइट द डिटेल्स ऑफ द बायकॉट, वो यहाँ पे। आई विल सजेस्ट यू टू हैव अ लुक एट द बायकॉट डिटेल्स। पहले तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, ये सारा यहाँ लिखा हुआ नहीं है। आई कनेक्टेड इट विद माइग्रेशन टू एबिसिनिया। व्हाट वाज द बायकॉट? द डिटेल्स आर हियर. Okay, and this paragraph, second paragraph, is telling you the challenges during the boycott. Understand? Boycott के अंदर क्या क्या था? You can see the key words there. No one will marry in the clan of Banu Hashim. Nobody will trade with them, and anyone who will help and support them will be boycotted as well, and he will suffer, or that person will suffer for that. So many people tried to convince the Quraysh to end it, but they did not listen. The document was signed by 40 leaders. कुछ बच्चे यहाँ पे उन लीडर्स के नाम भी ऐड करते हैं, which is a good thing if you have knowledge for that. It include Abu Jahal, Abu Lahab, Utba, many personalities famous with the people who are against that. You will write their name. It was hung in the Kaaba, which is a sign. जब तक ये hang कर रहा है, that is valid. जहाँ वो हट गया या end हो गया, automatically the boycott ends there. अब boycott के बीच में मुस्लिम्स के लिए challenges क्या थे inside that valley?
you need to develop that. So they were reducing the starvation, उनको leather खाना पड़ता था. Boiled leather, yes, good. Or boiled leaves. और very- जब कोई लोग थे जो security smuggle करते थे. Good. You will talk about Hazrat Khadija's role. She used to use her old links, जो trade के साथ link थे, and she used to pay double prices to arrange food for these people. तो बिल्कुल इसको वहाँ पे क्या करेंगे, link करें. Some people who tried to end it, their names are also there. Hisham, Zuhair, and Mutim bin Adi. And how did the contract end actually? How did the boycott here? So basically it was given by Allah himself. Exactly. So Allah made it eaten by the giving order to the termites. When it ended, Prophet ﷺ told his uncle to talk to Quraysh and tell that the agreement is ended and it's eaten by termites. And when the people were sent and they saw it, they found, yes, it's correct. So they were even shocked how this all happened. And that led to the end of the boycott. How many years it lasted, by the way, the boycott? The social boycott lasted for how many years? 600. Good. 3 years. 617 से 619. आपको years पता होना चाहिए time. अगर आप कैलेंडर की बात करते हैं इंग्लिश कैलेंडर की, तो 617 से 619. और अगर आप इसको हिजरी कैलेंडर तो स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉफिटहुड की बात करें, प्रॉफिट बनने के 7th ईयर में ये शुरू हुआ था and ended in almost 10th year. तो 7th year, 8th year, 9th year, 3 years जो थे ये year of boycott है. 10th year start हुआ, Prophet sallallahu alaihi wasallam lost 2 of his very famous family members. ये भी थोड़ा सा अगले event से link हो रहा है. And they are Holy Prophet's wife Hazrat Khadija and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Hazrat Abu Talib. How their death was challenging for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mental burden कैसे? Yes. एक तो they gave moral support to the Prophet. Who both of them actually. Yeah, and sir, Hazrat Abu Talib provided tribal protection to the Prophet. ट्राइबल प्रोटेक्शन को आपने जरा सा ज्यादा फोकस करना है क्योंकि अगला इवेंट उससे लिंक्ड है. Who was the new tribal leader after Holy Prophet's uncle Abu Talib? Abu Lahab. And you're going to mention who was the bitterest enemy. ये मैं आपसे क्यों सवाल कर रहा हूँ? क्योंकि we are linking our discussion to the last topic for today, that is visit to Taif. Visit to Taif के अंदर जब भी आप नोट लिखेंगे, you make sure that you are talking about a connection between visit to Taif and something which just happened. कैम्ब्रिज 2 तरह के क्वेश्चन देता है visit to Taif पे. यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, it is just Prophet's visit to Taif. लेकिन जब आपके पास कैम्ब्रिज का क्वेश्चन बैक नीचे आएगा, you will see it's asked differently. Sometimes the events surrounding it. Sometimes they used to ask the events which took place immediately before Prophet's visit to Taif and the main events of the journey. So you need a bit background and you are going to take the help of this recap जो मैंने अभी आपको साथ-साथ बताया. यहाँ तक समझ आया? Visit to Taif का cause आपने खुद बता दिया. What are the causes of visit to Taif? एक आपने बताया death of Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle Abu Talib. ठीक है, you will develop it. He was a tribal protector. New tribal leader was Abu Lahab. अब Prophet अरब कंट्री में आपको पता है वैसे भी बगैर आज भी सऊदी अरेबिया जहाँ ऐसे आपको नहीं जाने देते. What you need to do? You need a kafil or a sponsor there, and without that you cannot go and land there. I am here in Saudi Arabia, मुझे आप on arrival visa दे दें. You have someone there जो आपकी responsibility ले. इसी तरह Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has no tribal protector there. तो Prophet has 2 options. या तो वहीं के लोकल लोगों से रिक्वेस्ट करें किसी और से, क्योंकि अपने ट्राइब से तो बाहर निकल गए अब, या बाहर चले जाएं. बाहर जाएंगे डेफिनेटली द पीपल इफ दे प्रोवाइड यू. अभी देखें कुछ लोगों को, कुछ फेमस पर्सनालिटीज को कभी कंट्री से निकाला जाता है तो दूसरे कंट्री में वो अजाइलम लेते हैं, सब लाइक प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं जाके, क्योंकि दे नो वी आर नॉट सेफ इन अवर कंट्री बिकॉज नो वन इज गिविंग श्योरिटी ऑफ अवर लाइफ. और Prophet sallallahu alaihi wasallam also needed that, so therefore he decided to leave मक्का. क्लोजेस्ट शहर मक्का से कौन सा है? ताइफ. अभी भी आप मैप में देखें सबसे क्लोजेस्ट ताइफ ही है, बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है. प्रॉफिट वेंट देयर. अब यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना डिटेल लैक करते हैं. इवन आज मैंने बल्कि कुछ स्टूडेंट्स के स्कूल में हमने ताइफ पे नोट दिया ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स को, एंड आई फाउंड सम वेरी गुड इंफॉर्मेशन मोर देन व्हाट आई हैव कवर्ड हियर. और मैं आपको बताऊंगा भी आपने वो क्या चीज ऐड करनी है. आपने बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो गया, हमारा बैकग्राउंड क्या है, कॉजेस क्या है, एंड ऑल ऑफ दिस. क्यों गए क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन? साथ कौन गया प्रॉफिट के? ज़ैद बिन हारिस. दैट इज अच्छा फुल नेम लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन एग्जामिनर को पता चले, स्टूडेंट इज क्लियर कि, और इसको थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं. हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ होली प्रॉफिट अमंग द अर्लीस्ट कन्वर्ट्स एंड ही रिमेन्ड विद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही अकम्पनीड हिम इन दिस जर्नी एज वेल. अब व्हाई डिड प्रॉफिट गो देयर में एक और पॉइंट भी है. डू यू नो
to spread Islam. But do you know the two tribes, famous tribes of Taif? If you write their names, it's going to make your answer stronger. What are the two tribes of Taif जिसको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम स्प्रेड करना चाहना चाह रहे थे? और ये दोनों ट्राइब्स के नाम अगर आपको अभी पता होंगे, मदनी लाइफ में बैटल ऑफ हुनैन और सीज ऑफ ताइफ में भी आपको नाम चाहिए होंगे. व्हाट आर द टू ट्राइब्स, फेमस ट्राइब्स इन ताइफ? वेरी गुड, वन बनु हवाजिन, और दूसरा नाम है जहां से मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग फ्रॉम देयर एज वेल. मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी. व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्राइब? Banu Saqif. They are the two tribes which were there. And Muhammad bin Qasim originally belonged from Taif, जो हम पाकिस्तान में, इंडिया में इस्लाम लाने में जो रोल मेंशन करते, तो that is Banu Hawazin and Banu Saqif. दो tribes के नाम है. Prophet sallallahu alaihi wasallam was thinking that they are close to Islam, they may accept our teachings and they will accept. वहाँ पे भी idol worshipping था. वहाँ पे एक बड़ा famous idol था, मुझे नाम नहीं याद. I found it in one of the students' book, then I searched on that on internet if that information is correct or not, and that was correct information. So the students spoke about it कि Banu Hawazin और Banu Saqif दो strong tribes थे, और Prophet was thinking they will accept Islam, so Prophet went there. But when he started teaching them, when he met them, situation was different. Prophet met different leaders there. Can anyone tell me the names? तीन भाई थे, तीनों भाइयों के नाम. हाँ, तीन people कौन थे, तीन भाई कौन थे? हबीब, मसूद एंड अब्द याला. ये नॉर्मली ये वो है जो कैम्ब्रिज कहता है यू शुड राइट, और जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था यू मे राइट. तो आप लेवल 4 पे इस इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं पहुंच सकते. ये जो नाम है, ठीक है, 3 लीडर्स के नाम आप कैम्ब्रिज आपसे एक्सपेक्ट करता है, हबीब, मसूद एंड अब्द याला. यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा. हायर लेवल आंसर में एक और चीज जो मैं आपको बता रहा था, विच आई फाउंड इन द स्टूडेंट आंसर, ये हमाद इब्न निशात की बुक में है. One of them passed one remark, another passed. I wrote here, all the three of them ridiculed or made fun of Holy Prophet. But I found in some books it's mentioned what was the reaction of one brother, what did the other one say, what did the third one say. If you write it, that makes your answer go up. Okay? और Prophet के ऊपर stoning क्यों हुई, उसकी भी detail I found it in one of my students' answer. Even it was new to me as well. तो मैं आपको भी कहूँगा अगर आप क्योंकि आप ये सोचेंगे कंपटीशन आ रहा है आपके आंसर्स में. आपने एक अच्छा आंसर लिखा हुआ है, बट देयर इज अ हायर लेवल आंसर व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट चैलेंज फॉर यू, जो आपका बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड ऊपर लेके जाएगा. और उस स्टूडेंट ने वहां पे लिखा हुआ था देयर वाज अ बिग टेंपल, जहां पे उनका कोई फेमस आइडल था. प्रॉफिट वांटेड टू गो एंड मीट द लीडर्स देयर एंड द लीडर्स डिड नॉट वांट टू मीट हिम, सो दे आस्क्ड द यंग बॉयज टू थ्रो स्टोन्स ऑन होली प्रॉफिट एंड मेक होली प्रॉफिट एंड हिज पीपल leave. Holy Prophet and Hazrat Zaid leave that area. They started throwing them. Yes. Excellent. नेक्स्ट जनरेशन होपफुली. ग्रेट, गुड. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा साथ में आपके पॉइंट्स को भी एक्सपेंड कर देता हूँ. अब व्हाट हैपेंड, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब स्टोनिंग हुआ, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and Hazrat Zaid came outside covered with blood and all of these things. You already mentioned, आप orchard भी लिख सकते हैं, आप garden लिख सकते हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took shelter. We need the names of the two people to whom that garden belonged to. They were the sons of Abd Manaf, and their names were Utbah and Sheba. They both were polytheists, but they took sympathy on Holy Prophet when they saw Prophet sallallahu alaihi wasallam is in that situation. So what did they do? They asked their slaves. Slave का भी name आपका आएगा. What's the name of the slave? His name is Adas. He belonged from Christian religion. He belonged from an area called Nineveh. Nineveh is a place from where Hazrat Yunus alayhi salam belonged. मैंने यहाँ पे यूनुस की जगह क्या लिखा हुआ है? जोना लिखा हुआ है. जोना और जोनस, यूनुस इज सेम थिंग. हजरत यूनुस अलैहि सलाम. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल है. Prophet sallallahu alaihi wasallam, before eating the grapes, he said Bismillah. When he said Bismillah, that person was shocked. He said, "How do you know about this all?" Then Prophet told about himself and all of these things. That slave was inspired and he accepted Islam. इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, but you should cover this portion talking about कहाँ पे shelter लिया. Or you will also talk about the name of the slave, what did he serve, and then his conversion discussion is there. अब angel of mountains की detail आएगी, ठीक है? Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was there, कुछ books में लिखा है, Prophet left the orchard and he was coming out of the city when angels met. Angel Jibreel with angel of mountain was there. There is a detailed
dialogue or references there which is going to make your answer stronger. आप ये point वहाँ पे develop कर सकते हैं. And Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे इस part में ना 4 mark के बहुत सारे answers बनते हैं. Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभी persecution opposition है, आपको पता चल गया, remain patient. किसी की लड़ाई हो और अकेला बंदा हो, कोई हेल्पर नहीं हो, तो पिट पिटा के वापस आ रहा होता है, सडनली एक बड़ा गैंग आ जाता है, कहता है भाई बताओ क्या मसला, भी हम हेल्प करते हैं, हमारा क्या रिएक्शन होगा, चलो चलो बस को सीधा करते हैं पिछले वाले को. प्रॉफिट के पास एंजल्स आ गए, ठीक है. अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो कहते हैं भाई बदला लेने का टाइम है, इनको तो मैं अभी सीधा करता हूँ. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिएक्टेड एंड इट शोज हिज काइंडनेस, मर्सीफुलनेस. Such type of points will be there. Instead of taking revenge, he was thinking for the betterment of those people. तो आपने इसको यहाँ पे डेवलप भी करना है. Exactly. Prophet ने जो दुआ इनको दी थी, may their coming generation will accept Islam. ये बात हम कर रहे हैं 619 AD की. And the whole of Taif was captured in 630 AD. Within 10 years, almost the whole of Taif got converted to Islam. वो आप वाकया पढ़ेंगे, Battle of Hunain और Siege of Taif में हम डिस्कस करेंगे. Prophet दुआ बहुत. And I give you the name of a person, Muhammad bin Qasim al-Thaqafi, who spread Islam from Taif and moved towards Asian states. और वो पूरा जो सिंध के अंदर इस्लाम की एंट्री में he became the source behind that. Prophet sallallahu alaihi wasallam's interaction with angels is going to be a big good paragraph there. Then you are going to talk about Prophet's stop at a place called Nakhla. एक नखला इंसिडेंट बदर में है, वो अलग चीज है, जगह वही है. नखला इज अ प्लेस जहाँ पे खजूर के दरख्त बहुत ज्यादा लगे होते हैं, तो देयर इज अ प्लेस फेमस एज नखला. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज परफॉर्मिंग फजर प्रेयर. कुछ बुक्स में द जिन्स joined prophet in the prayer as well, and कुछ बुक्स में they heard Quran and they asked the rest of the people to be quiet and listen to it, and they accepted Islam and they returned back. ये जो मीटिंग विद जिन है, अगेन इससे भी लेसन मिलते हैं. एंजल्स तो चले गए, अब दूसरा ग्रुप आ गया, जिन. प्रॉफिट कैन फील प्राउड, ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई ठीक है, नहीं इंसान मान रहा, कोई बात नहीं, जिन आ गए, अब मैं बड़ा हुई. प्रॉफिट रिमेन्ड हम्बल, तो हम्बलनेस इज हाईलाइटेड हियर. प्रॉफिट ह्यूमिलिटी इज हियर. एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाकया कुरान में है. कुछ लोगों को डाउट होता है कि पता नहीं जिन के साथ कैसे बात होगी. कुरान में सूरह अहकाफ में डिस्कशन है. सूरह अहकाफ जो 26 है कुरान का, 26 के शुरू में जो पहली सूरत है, उसके एंड पे आखिरी 2 रुकू में आपको ये वाकया मिल जाएगा. या आप डायरेक्ट सूरह जिन भी अगर ट्रांसलेशन देखें तो वहां पे भी ये वाकया मेंशन हुआ है और उसका रेफरेंस भी ऐड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. एंड पे लास्ट चीज आपने आंसर में क्या लिखनी है. प्रॉफिट मक्का से क्यों निकले थे बाहर? व्हाट वाज द रीजन? परसिक्यूशन के अलावा सोचे, परसिक्यूशन तो बहुत पहले से हुआ. ट्राइबल प्रोटेक्शन वाज नो मोर, तो वापस कैसे जाएंगे? तो ही स्टिल नीड्स ट्राइबल प्रोटेक्शन. व्हाट डिड ही डू? He requested many people. अगर आपको लोगों के नाम नहीं आते, ignore it. The one who accepted to give tribal protection to Holy Prophet, his name was Mutim bin Adi. ये आपको जरूरी पता होना चाहिए. And you are going to mention Mutim bin Adi gave tribal protection and Prophet returned safely. ठीक हो गया. इस आंसर के अंदर causes, arrival, reaction of the leaders के names, what happened inside the orchard, वो पूरा वाकया, फिर उसके बाद meeting with angels, फिर Prophet sallallahu alaihi wasallam's meeting with jinn, then tribal protection again seek करना, and Prophet returned back to Makkah. ये पूरा आपका एक event complete हो जाता है. We have done 2 questions today, 10 mark के जो बड़े हैं, इसमें बीच में 4 mark के questions भी आ गए. We are left with 4 topics before we wind up Makki life of Holy Prophet, और उसमें रह जाता है हमारे पास Isra and Miraj, villages of Aqaba, causes of migration to Medina and events during migration to Medina. टॉपिक ऐसा है जिसमें नींद भी आने लगती है और क्योंकि मैं उसमें कोई एक्टिविटी करवा नहीं सकता. यस, तो इसरा मेराज आसान एक्चुअली इन सब में, लेकिन आई एम गिविंग लेक्चर. मैं भी अगर बैठ कर सुन रहा हूँ मुझे तो नींद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इफ आई एम आस्किंग यू तो 1-2 पॉइंट से आगे मैं पूछूंगा तो फिर बाकियों को लगेगा कि नई चीज कुछ समझ नहीं आ रही है या वो आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा. तो आई पर्सनली वांट कि मैं साथ रिकैप करूं. तो वी विल स्टॉप द डिस्कशन हियर. आई विल अपलोड द टेस्ट टॉपिक्स इन द ग्रुप इंशाल्लाह. इवन आई विल फाइंड अपडेट यू, रिमाइंड यू टुमारो एज वेल. मंडे को टेस्ट होगा इंशाल्लाह हमारा. डन फॉर टुडे. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.